اگر اللہ تعالیٰ نے کچھ لکھا ہوگا تو ڈیفینیٹلی کچھ ہوگا، معاوضہ ہو جائے گا، سامنے والی ٹیم آؤٹ ہو جائے گی. ہم 500 رن کریں اور کوشش تو کریں گے 500 رن کرنے کی پوری ٹرائی کریں گے. بنگلہ دیش کے خلاف 500 رنز بنانے اور 50 رنز پر آؤٹ کرنے کی کوشش کریں گے. قومی ٹیم کے کپتان سرفراز احمد کا ناممکن کو ممکن بنانے کا عزم. نیوز کانفرنس میں کہا نصیب میں ہوا تو معجزہ ہو جائے گا. ایک طبقہ جو ہے وہ 35 سال 40 سال برسر اقتدار رہا اور ایک طبقہ کچھ مہینے برسر اقتدار رہا، تو 35-40 سال کا حساب کرنا پہلے ضروری ہے. اس کے بعد جو لوگ مہینوں کے حساب سے برسر اقتدار آئے پھر ان کا بھی حساب کتاب کیا جائے گا. حساب سب کا ہوگا. پہلے 30-35 سال اقتدار میں رہنے والوں کا احتساب، پھر چند ماہ والوں کی باری آئے گی. چیئرمین نیب نے بتا دیا. تقریب سے خطاب میں کہا کروڑوں اربوں روپے کی منی لانڈرنگ کے ٹھوس شواہد موجود ہیں. وکٹری کا نشان بنانے سے کوئی بے قصور نہیں ہو جاتا. نیا پاکستان عوام کے لیے عذاب بن گیا. وفاقی حکومت نے دھاندلی کر کے بجٹ پاس کرایا. عوام کا معاشی قتل کیا جا رہا ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے محمد سے حکومت پر تیر برسا دیے. کہا حکومت نے آمرانہ دور کی پابندیاں لگا دی. نواز شریف کی آف شور کمپنی حرام اور ان کی حلال ہے. مسلم لیگ نون کی قیادت گرفتاریوں پر برہم. شہباز شریف نے کارکنوں کو حوصلہ رکھنے کا مشورہ دے دیا. میڈیا سے گفتگو میں کہا عمران اور 6 ہتھ کنڈوں سے باز آ جائیں، ایک ایک ظلم کا حساب لیا جائے گا. شاہد خاقان عباسی بولے جو خود این آر او پر ہیں وہ دوسروں کو کیا این آر او دیں گے. مریم نواز نے والد سے ہفتے میں 2 روز ملاقات کرنے کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا. رانا ثنا کی گرفتاری سے حکومت کا کوئی لینا دینا نہیں. وزیراعظم عمران خان نے اپوزیشن کے الزامات مسترد کر دیے. کہا پاکستان میں تمام ادارے اور عدالتیں آزاد ہیں. حکومت پر الزام لگا کر اپوزیشن اپنے جرائم سے توجہ ہٹانا چاہتی ہے. تقریباً 3 ہفتے رانا ثناء اللہ صاحب کی گاڑی کو، رانا ثناء اللہ صاحب کی موومنٹس کو ہر لیول پر آبزرو کیا گیا، گیج کیا. اس کی فوٹیجز تمام تر چیزیں ہمارے پاس موجود. رانا ثنا کے خلاف ایکشن مکمل معلومات پر ہوا. 3 ہفتے تک گاڑی کی نگرانی کی گئی. تمام ثبوت موجود ہیں جو عدالت میں پیش کیے جائیں گے. وزیر مملکت شہریار آفریدی کی پریس کانفرنس. ڈی جی ایرت نے کہا ہم نے بڑے بڑے لوگوں پر ہاتھ ڈالنا ہے. صحافی کے ثبوتوں کے سوال کے جواب میں کہا یہ فلم نہیں حقیقت ہے. صاحب کی طبیعت بالکل ٹھیک نہیں ہے. وہ اتنے ویک، ان سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا اور ان کو 2 بندے پکڑ کے اندر لے کے آ رہے تھے. عمران خان میں سب کے سامنے میں FIR تمہارے نام کٹواؤں گی. رانا ثنا کی طبیعت ٹھیک نہیں. 2 دن سے انہیں کھانا بھی نہیں دیا گیا. کمرے میں پنکھا تک نہیں. اہلیہ کا الزام. کہا شوہر کو کچھ ہوا تو وزیراعظم کے خلاف پرچہ درج کرائیں گے. دوسرے جو بین الاقوامی ادارے ہیں انہوں نے IMF کے پروگرام کی اپروول کے ساتھ اپنی جانب سے بھی پاکستان کو فنڈز ریلیز کرنے کا سلسلہ شروع کیا ہے. IMF بیل آؤٹ پیکج سے حکومت کا اعتماد بڑھنے لگا. مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ نے حالات بدلنے کی نوید سنا دی. نیوز کانفرنس میں کہا ورلڈ بینک 3.4 اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک $3.2 ملین دے گا. حکومت کی ایسٹ ڈکلیریشن اسکیم 1,37,000 افراد ٹیکس نیٹ میں آ گئے. 17 ارب کا ٹیکس وصول. 3,000 ارب روپے کے اثاثے ظاہر کیے گئے. 1 لاکھ نئے فائلر بھی سسٹم میں شامل ہو گئے. نسل در نسل حکومت کرنے والوں نے ملک کو قرض کے دلدل میں دھکیلا. ملک کی 4تھی نسل گروی رکھ دی گئی. معاون خصوصی فردوس عاشقوان کی گھن گرج. کہا اب پاکستان بدل چکا. نئے پاکستان میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا تربیلا جھیل ہری پور کا دورہ. کشتی حادثے میں جاں بحق افراد کے لیے 5 لاکھ اور زخمیوں کے لیے 1-1 لاکھ روپے کا اعلان. گزشتہ روز کشتی الٹنے سے 40 سے زائد افراد ڈوب گئے تھے. 4 لاشیں نکال لی گئیں. 10 افراد کو زندہ بچا لیا گیا.
भारत का मकरूर चेहरा बेनकाब होने के करीब। आलमी अदालत इंसाफ भारतीय जासूस कुलभूषण जादेव से मुतालिक महफूज फैसला 17 जुलाई को सुनाएगी। पाकिस्तान की फतह मुतवक्के। पाक फौज के बहादुर जवान वतन की आन पर कुर्बान। गुज़िश्ता रोज शहीद होने वाले सिपाही गुलाम कासिम, नायक शेर जमान, सूबेदार मोहम्मद सादिक और सिपाही जुहेब को आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक कर दिया गया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर धमाके से 5 फौजी जवान शहीद हो गए थे। वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा अमरीका। 22 जुलाई को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। हज ऑपरेशन और रोड टू मक्का मंसूबे का आगाज। सऊदी एयरलाइंस 719 आज़मीन हज को लेकर मदीना पहुंच गई। कराची से पहली हज परवाज कल सऊदी अरब जाएगी। लाहौर एयरपोर्ट पर 2 अफराद को कत्ल करने वाले मुल्जिमान का 15 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। दूसरी जानिब इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में मुसल्लह अफराद के दाखिले की कोशिश। पुलिस ने 10 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। कराची की हैदरी मार्केट में ज्वेलर्स की दुकान का सफाया करने वाला गिरोह पकड़ा गया। खातून समेत 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। 1.5 करोड़ रुपए मालियत का सोना बरामद। दरामदी गाड़ियों पर डॉलर में ड्यूटी। बजट में फेडरल एक्साइज ड्यूटी में इजाफा क्यों किया? कराची में कार डीलर्स एसोसिएशन भी सड़कों पर निकल आए। शदीद एहतजाज। ड्यूटी के खात्मे और SRO वापस लेने का मुतालिबा। कराची में नर्सिंग स्टाफ एक बार फिर सरापा एहतजाज। सिंध भर में ऑपरेशन थिएटर के अलावा तमाम शोबों में काम बंद कर दिया। कराची प्रेस क्लब के सामने मुजाहिरा, अलाउंसेस देने का मुतालबा। पाकिस्तान में खूबसूरती पर भी टैक्स। मेकअप प्रोडक्ट की कीमतों में इजाफा। सजने संवरने में रुकावट। खवातीन नाला। हुकूमत से टैक्स वापस लेने का मुतालबा। 50 क्या 100% रेट इंक्रीज हो गए हैं। फेशियल वगैरह में इतने रेट्स बढ़ा दिए हुए हैं कि हम करवाने के बजाय ना घर वापस चले जाते हैं। जब से इमरान खान आया बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई है। हमें खूबसूरती के लिए हमें टैक्स देने पड़ रहे हैं। भारतीय जासूस कुलभूषण जादेव से मुतालिक महफूज फैसला 17 जुलाई को सुनाएगी। कुलभूषण केस का फैसला मकामी वक्त के मुताबिक सपहर 3 बजे सुनाया जाएगा। और हुकूमती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने केस बेहतर अंदाज में लड़ा है। उम्मीद है फतह पाकिस्तान की होगी। और अब बात करेंगे वर्ल्ड कप में कौमी क्रिकेट टीम के सफर की। कल क्या होगा इसका सबको इंतजार है। कल पाकिस्तान बांग्लादेश के खिलाफ अहम मैच खेलेगा, मगर ये मैच महज रस्मी कार्रवाई लगता है। पाकिस्तान इवेंट से बाहर होता नजर आ रहा है। कल का मैच पाकिस्तान के लिए न सिर्फ जीतना जरूरी है बल्कि बांग्लादेश को 316 रन से हराना होगा। पाकिस्तान को किसी भी सूरत पहले बैटिंग करना होगी। टॉस बांग्लादेश ने जीता तो कहानी वहीं खत्म। पहली बॉल से पहले ही पाकिस्तान इवेंट से बाहर हो जाएगा। ऐसी सूरत हाल में तो अब कौम को सिर्फ मौजज़े का ही। फाइनल में पहुंची तो कयामत की निशानी होगी। दिल जले फैंस शाहीनों की परफॉर्मेंस पर फट पड़े। पाकिस्तान की बैड लक है, लेकिन की अपनी गलतियां जो सामने आई हैं। फील्डिंग अच्छी नहीं है, बैटिंग अच्छी नहीं है, बस ऐसा ही है। अवाम बहुत नाराज हो गया इनसे। अनप्रिडिक्टेबल का टैग हटा है, प्रिडिक्टेबल लाया, हर मैच जीते। शुरू के मैच उन्होंने बहुत वीक खेले, बहुत ज्यादा वीक खेले। सोशल मीडिया पर जारी हैं तंज के बाउंसर्स। कोई कहता है बांग्लादेश को ड्रेसिंग रूम में बंद करो, तो किसी ने कराची एयरपोर्ट का नाम सेमीफाइनल रखने का मशवरा दे दिया। किस्म के सियासी इंतकाम पर यकीन नहीं रखता, चेयरमैन नैब ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, पहले 35 साल इक़्तिदार करने वालों का हिसाब होगा, फिर 8 माह वालों की भी बारी आएगी। किसी का ये नारा लगाने से कि जी हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई हो रही है, या किसी जगह चंद लोगों को इकट्ठा करके वी का निशान बनाने से वो आदमी बेकसूर नहीं होता। हिसाब होगा और सबका होगा, चेयरमैन नैब ने वाज़ेह कर दिया। 35-40 साल का हिसाब करना पहले जरूरी है, उसके बाद जो लोग महीनों के हिसाब से बरसरे इक़्तिदार आए फिर उनका भी हिसाब किताब किया जाएगा। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी फेस को देखा हो, हमेशा केस को देखा है। जावेद इकबाल ने तनकीद करने वालों को शट अप कॉल भी दे दी। नैब
जोड़ तोड़ करने का इरादा नहीं है। नैब के किसी फर्द ने बशमूल चेयरमैन किसी कौमी असम्बली के मेंबर से अगर कभी मुलाकात की है तो आप यकीन करें कि मैं खुद ही अपनी पोस्ट से अलहदा हो जाऊंगा। कहा ये एक केस भी बगैर वजह के नहीं बनाया। 90s में होंडा 70 पर थे, अगर आज उनसे ये पूछा जाए कि जी ये दुबई में टावर कहाँ से आ गए हैं, ऑस्ट्रेलिया में ज़रूरी फार्म कैसे आए हैं, लंदन में इतनी जायदादें कैसे बनी हैं, तो आप बताएं क्या कसूर है। उनका कहना था कि $100 अरब का कर्ज अलल्ले तलल्ले खर्च हुआ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि राना सनाउल्लाह की मंशियात हराम है मगर वजीर आजम की मंशियात हलाल है। मोहम्मद में पीपल्स पार्टी का पावर शो, बिलावल भुट्टो ने तीर बरसा दिए। गरीब की झोपड़ी हराम है मगर बड़ी गाला की इंक्रोचमेंट हलाल है। लाहौर का मेट्रो बस हराम है मगर पेशावर का मेट्रो बस हलाल है। नवाज शरीफ का ऑफशोर कंपनी तो हराम है मगर लाडला का ऑफशोर कंपनी हलाल है। बिलावल भुट्टो ने बजट पर भी तनकीद की। पाकिस्तान के नाम पे, तब्दीली के नाम पे, इंसाफ के नाम पे आपके के सारे हकूक मारे जा रहे हैं, छीने जा रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, अवाम के लिए आवाज उठाना अगर जुर्म है तो ये जुर्म बार बार करता रहूंगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पार्टी रहनुमाओं और तर्जुमानों का इजलास हुआ जिसमें राना सना की गिरफ्तारी के बाद की सूरत हाल पर गौर किया गया। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह कर दिया कि लीगी रहनुमा की गिरफ्तारी के पीछे हुकूमत का कोई हाथ नहीं, लोग अपनी सफाई अदालत में पेश करें। कि किसने मुखबरी की कि उनकी गाड़ी में 15 किलो मंशियात थी, खुद इमरान खान न्याजी उसका मुखबिर है। इंतकाम की सियासत पीटीआई का नजरिया नहीं, वजीर आजम इमरान खान का दो टोक मौक़िफ़। कहा, हुकूमत पर इल्जाम लगाकर ओपोजिशन अपने जराइम से तवज्जो हटाना चाहती है। राना सना की गिरफ्तारी से हुकूमत का कोई लेना देना नहीं। पाकिस्तान में तमाम इदारे और अदालतें आजाद हैं। जिन लोगों पर मुकदमात हैं वो अपनी सफाई अदालत में दे। वजीर आजम ने बेनामी जायदादें रखने वालों को भी खबरदार किया। कहा, जितना वक्त मिलना था मिल गया, अब कार्रवाई होगी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से जेल में शहबाज शरीफ, मरियम और घर के दीगर अफराद ने मुलाकात की। लीगी रहनुमाओं को आज भी कायद से नहीं मिलने दिया गया। नवाज शरीफ से जेल में अहले खाना की मुलाकात। 2 घंटे से जायद लगने वाली बैठक में सेहत और सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। जेल से निकलकर शहबाज शरीफ हुकूमत पर खूब गरजे। इमरान खान हथकंडों से बाज आओ और इन जानों को परवानों से मिलने दो। वो वक्त दूर नहीं जब कौम तुमसे एक एक बात का हिसाब ले। मुलाकात की इजाजत न मिलने पर लीगी रहनुमा भी बरस पड़े। जिनके अरबों के सासे उसके वजीरों के बाहर हैं, उनको एनआरओ दे, अपने आप को एनआरओ दे, फिर एनआरओ की बात करें। एनआरओ का इख्तियार इमरान खान के पास नहीं है, ये बातें भूल जाए। उस नहत्ती लड़की की आवाज को दबाने के लिए जो कोशिशें आप करते हैं, जिसका नाम मरियम नवाज है, उसके साथ खड़े हैं, उसके साथ चलेंगे। उधर मरियम नवाज ने वालिद से हफ्ते में 2 बार मुलाकात के लिए अदालत से भी रुजू कर लिया। नवाज